हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑन माय यूट्यूब चैनल आवारा फिजिक्स द लर्न द वे यू विश एंड वेलकम इन 11th क्लास ऑल द स्टूडेंट. सो हियर यू आर जस्ट स्टडिंग विद एसके सर. सो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है. ऐसा कोई भी डाउट हो जो आपको समझ में नहीं आए, सो यू कैन जस्ट ड्रॉप अ मैसेज इन द कमेंट बॉक्स ऑफ दिस चैनल and you can subscribe this channel for more videos and information about the physics. So let's start our lecture without wasting a time. Standard is 11th. Chapter 1 we are going to be start, and the name of the chapter is Units and Measurements. It covers CBSE and all other state board examinations. So what are the topics we are going to be cover here? First of all, let's try to discuss and understand topics to be covered today. Basic understanding of definition. Number 1, measurement. Second one is physical quantities. And third one is units and its types and fundamental units. And fifth one is derived units and system of units and its types. So these are the things we are going to be cover here today in this video. If you have any single doubt, you can comment in the comment box. So सभी हीरो लोग आज से आप लोग चैप्टर 1 शुरू कर रहे हैं. विदाउट एनी प्रेशर, बी रिलैक्स एंड स्टडी एंड एंजॉय द फिजिक्स सब्जेक्ट. सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस फिजिक्स. ओके, सो द फर्स्ट टॉपिक इट इज मेजरमेंट. सो व्हाट एक्चुअली मीनिंग ऑफ मेजरमेंट and why it is needed in physics? Because we are measuring every object in physics. Suppose you want to just measure the fluid pressure, you want to measure the statistics about the fluid, and if you want to just talk about the length of the object, if you want to talk about the temperature of the liquid, temperature of the solid surface, okay, and solid substance, all these things you will be measure in different physical quantities. So वो कौन सी physical quantities है जो हमें इसकी जरूरत है, उन सब की बात हम करने वाले हैं यहाँ पे. तो स्टार्ट करते हैं कि सभी बच्चों को ये समझ में आ जाए. बच्चे नहीं बोलूंगा मैं, हीरो लोग बोलूंगा, क्योंकि यू ऑल आर माई हीरोज. सभी हीरो लोग को समझ में आए कि मेजरमेंट क्या होता है, क्यों मेजरमेंट करते हैं. ठीक है, सो मैं एक डेफिनेशन लिख रहा हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि मेजरमेंट क्या चीज है. ओके, सो आई कैन से दैट the comparison of any physical quantities with its standard units is called measurement. Let's take one example by which you can able to understand why we are going to compare any physical quantities with its standard units. क्यों मैं compare कर रहा हूं किसी भी physical quantity को किसके साथ, उसकी स्टैंडर्ड यूनिट के साथ. सपोज मैंने आपको बोला जस्ट गो एंड ब्रिंग 500 ग्राम sugar, and I told you compare it with standard unit. So standard unit is kilogram, and this is your physical quantities that I express this quantity in 500 gram, and I told you convert it into the standard. कैसे convert करूं? So obviously बात, you have to be know that 1 kilogram is equals to 1000 gram. So you have to be do for comparison, you have to find out ratio. You will tell you the comparison. So you are dividing 1000, 0 to 0 cancel, and this is 0.5 kilogram. So you express a normal physical quantity in the standard form. That is called measurement in physics. In physics you have to compare any physical quantity with its standard units. That is called
मेजरमेंट। वापस बोल रहा हूं, यहां पर अगर आप कंपेयर करते हो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का उसके स्टैंडर्ड यूनिट के साथ, किसके साथ कंपेयर करना है? स्टैंडर्ड यूनिट के साथ, तो वो क्या कहलाता है? मेजरमेंट। जैसे मैंने यहाँ कहा था 500 ग्राम शुगर लेकर आओ, और आप गए मार्केट में, और सभी में से एक हीरो लोग मार्केट में गया, मैंने बोला उसको कि आप 500 ग्राम शुगर लेके तो आ गए हो, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बताओ। तो तुरंत एक हीरो ने बोला कि सर यहाँ पे 1 किलोग्राम, आई कैन से दैट किलोग्राम इज द व्हाट सर? स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास। सो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। सो सर आई कैन से दैट यू हैव टू बी कन्वर्ट दिस इनटू द व्हाट? स्टैंडर्ड यूनिट। सो 500 ग्राम को मुझे किस में चेंज करना था? किलोग्राम में। सो आई नो दैट 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। सो ग्राम में ही किसको डिवाइड कर दिया? ग्राम माइनस 1000 से डिवाइड कर दिया। तो जैसे ही मैंने 1000 से डिवाइड किया, आई गॉट इट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस 500 ग्राम। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 500 ग्राम इज 0.5 kilogram. Hopefully you understood this first definition about the units and measurements. Now we are proceeding with the second definition, and this is also very important. Physical quantities. क्या होती है physical quantities, and why I am going to be just define here this physical quantities. It is also very important. Let's try to understand what do you mean by physical quantities. अब मैं कुछ टर्म्स ले रहा हूं जो आपको समझ में आ जाएगी बहुत इजी वे में. क्वांटिटीज, क्वांटिटीज मीन्स लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, okay, temperature, we can say that the intensity, okay, so these are the what? Quantities. So these are the physical quantities. These are the physical quantities. When I can express these physical quantities in terms of laws of physics, laws of physics, अगर मैं क्या करूं, जितनी भी क्वांटिटीज है उनको किसके लिए यूज कर रहा हूं? उनकी एक टर्म में यूज कर रहा हूं. किसके लिए? लॉ ऑफ फिजिक्स, लॉ ऑफ फिजिक्स. और इनको क्या करना मुझे? लॉ ऑफ फिजिक्स आर डिस्क्राइब्ड, लॉ ऑफ फिजिक्स आर डिस्क्राइब्ड. मैं क्या कर रहा हूं? अलग अलग क्वांटिटीज को यूज कर रहा हूं और इनकी टर्म्स को यूज करके किसको डिस्क्राइब करना चाहता हूं? लॉ ऑफ फिजिक्स आर डिस्क्राइब्ड. तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए क्या चाहिए मुझे? फॉर दिस whose measurement is necessary, whose measurement is necessary. So अगर मुझे किसी भी फिजिक्स के लॉ को डिस्क्राइब करने के लिए जिन भी क्वांटिटीज को जिस टर्म में रिप्रेजेंट करना होगा, तो उनके लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? मेजरमेंट की. तो ये जितनी भी क्वांटिटीज होगी जिनकी मुझे किसी भी फिजिक्स के लॉ को डिस्क्राइब करने के लिए क्या करनी पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी. तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटीज को मैं क्या बोलूंगा? फिजिकल क्वांटिटीज. क्वांटिटीज के आगे मैंने क्या ऐड किया? फिजिकल. तो फिजिक्स के जितने भी लॉ को डिफाइन करने के लिए जितनी भी क्वांटिटीज है जिनका यूज होने वाला है, ऐसी क्वांटिटीज को मैं क्या बोलूंगा? फिजिकल क्वांटिटीज. एंड दिस क्वांटिटीज आर वेरी वेरी नेसेसरी, ओके, whose measurement is very very necessary. उसका मेजरमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज. बहुत शॉर्ट में डेफिनेशन में बता देता हूं एक बार फिर, आपको कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है? हीरो लोग ध्यान से समझना. यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब ऐसी क्वांटिटीज जिसका यूज किसके लिए करने वाला हूं मैं? फिजिक्स के लॉ को डिस्क्राइब करने के लिए, फिजिक्स के लॉ को डिस्क्राइब करने के लिए. तो ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज. और ये फिजिकल क्वांटिटीज इन लॉ को डिफाइन करने के लिए इनका जो मेजरमेंट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. एंड दिस क्वांटिटीज विच इज यूज टू जस्ट डिफाइन द फिजिक्स और लॉ ऑफ फिजिक्स, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज. सो उम्मीद करता हूं कि आपको दो टॉपिक समझ में आ गए होंगे. सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द next topic, and this is very important topic. So let's try to understand the next one topic. In this next one topic we are going to be talk about here physical quantities is over. Now we are talking about units. क्या होता है units? What do you mean by
units. So let's try to understand what do you mean by units. Okay, so let's first I'm going to be write the definition, and after that I'm going to be explain this. A definite amount of any physical quantity is taken as its standard. Okay, and this is the first point. And second point, the most important, internationally accepted. So what is the important thing is here? So हीरो लोग ध्यान से समझना, यूनिट्स क्या होती है? अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज है, उसका अगर कोई डिफाइनाइट अमाउंट है, क्या है? डिफाइनाइट अमाउंट है, और उस डिफाइनाइट अमाउंट को मैं किस में रिप्रेजेंट कर दूं? उसके स्टैंडर्ड में उसे मैं क्या बोलूंगा? उसका यूनिट बोलूंगा. जैसे मैंने क्या किया था वहां एग्जाम्पल में, 500 ग्राम को मैंने किस में चेंज कर दिया था? किलोग्राम में. और किलोग्राम में कितना हो गया था वो? 0.5 किलोग्राम. तो मैंने क्या किया, कुछ अमाउंट लिया किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का, और उस फिजिकल क्वांटिटीज को मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया. तो जैसे ही मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करता हूं तो मेरे पास कितना आ जाता है? 0.5 किलोग्राम. और ये जो किलोग्राम है किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या है? मास. और ये मास की जो यूनिट है किलोग्राम, वो इंटरनेशनली क्या है? एक्सेप्टेड है. So I can say that the international unit of mass is kilogram. So this is called unit. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डिफाइनाइट अमाउंट अगर हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसकी जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड यूनिट्स. और ये यूनिट्स इंटरनेशनली क्या होनी चाहिए? एक्सेप्टेड होनी चाहिए. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ units. So there are basically two types of units. यहां पे हीरो लोग ध्यान से समझना, दो टाइप की यूनिट है. नंबर 1 इज फंडामेंटल यूनिट and the second one is derived units. So there are two units. Number 1 is fundamental units and second one is derived units. So first I am going to be explain here fundamental unit. क्या होती है हीरो लोग फंडामेंटल यूनिट, उसको हम पहले समझ लेते हैं. So let's try to understand fundamental units. क्या होती है fundamental units, and this is very important to understand. Now let's define first the definition. जो रूल्स रेगुलेशन है इस चैनल पे आपको मैं पहले डेफिनेशन लिखूंगा, उसके बाद उसको अच्छे से समझाऊंगा. ओके, सो व्हाट एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स? दोज फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज विच आर independent to each other, are called fundamental quantities. तो हीरो लोग यहाँ ध्यान से समझना, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो किसी पे डिपेंड नहीं करती, मीन्स वो क्या होती है? इंडिपेंडेंट. ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज. दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज. आई कैन से दैट इन शॉर्ट मैनर, इट हैज ओन एग्जिस्टेंस.
it has own existence, it will not depend on others, it will not depend on others, किसी पे डिपेंड करती नहीं है। बेसिकली ये 7 है, सो उन 7 को मैं डिफाइन कर रहा हूं, लेकिन सप्लीमेंट में 2 और है, कितने हैं? 2। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6 and 7. Here I am writing number 8 and number 9. तो यहां मैं लिख देता हूं, these are the main, these are the supplement. Supplement means ये मेन में नहीं आते हैं, ये इनके साथ में है, ठीक है। अभी तक इनको स्टैंडर्ड में कंसिडर नहीं किया हुआ है, ओके, इसको कंसिडर किया हुआ है। तो मेन में यहां मैं लिखूंगा आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज, क्या लिखूंगा मैं इधर? फंडामेंटल क्वांटिटीज, और यहां लिखूंगा उनकी यूनिट्स क्या है, जो कि स्टैंडर्ड सिस्टम में एक्सेप्टेबल है, ओके। तो सेम टू सेम यहां पर भी मैं क्या लिखूंगा? फंडामेंटल क्वांटिटीज का नाम लिखूंगा, और यहां पे मैं लिखूंगा यूनिट्स। तो सबसे फर्स्ट जो आपके सामने है वो है लेंथ। क्या नाम है उस फंडामेंटल क्वांटिटीज का? लेंथ। लेंथ किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। सेकंड है मास, थर्ड है यहां पर टाइम, फोर्थ है टेम्परेचर। अरे हीरो लोगों को समझ में आ रहा है? ओके, होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिफ्थ है इलेक्ट्रिक करंट, और सिक्स्थ है हमारे पास लुमिनस इंटेंसिटी। क्या है? लुमिनस इंटेंसिटी। और यहां पर लास्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या है लास्ट? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और अगर सप्लीमेंट में बात करें तो सप्लीमेंट में यहां पे हमारे पास आ जाएगा, एक आ जाएगा सबसे पहले प्लेन एंगल। क्या आ जाएगा? प्लेन एंगल। और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा इधर सॉलिड एंगल। क्या आ जाएगा हीरो लोग? सॉलिड एंगल। तो अब मैं डिफाइन करने वाला हूं इसकी यूनिट। 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो फंडामेंटल यूनिट्स कितनी है सर? 7। सप्लीमेंट कितने हैं सर? 2। कौन कौन सी है? LMTTELA, LMTTELA। L for length, M for mass, T for time, T for temperature, electric current, luminous intensity, amount of substance। और मास को आप मेजर किस में करते हो? सो दिस इज इन किलोग्राम। किस में मेजर करते हो? किलोग्राम में, ठीक है। इसके बाद टाइम को किस में मेजर करते हैं आप? सेकंड में। टेम्परेचर को किस में मेजर करते हैं? केल्विन। ये इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, याद रखना। टेम्परेचर को केल्विन में ही लिखा जाएगा, कहीं पर किसी भी बुक में देख लो। टाइम को सेकंड में लिखा जाएगा, मास को किलोग्राम में लिखा जाएगा, लेंथ को मीटर में लिखा जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो उसको चेंज करना होगा किसी भी क्वेश्चंस के अंदर, ओके। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या है? एम्पियर। किसकी मेमोरी में एम्पियर रखी गई है? साइंटिस्ट एम्पियर, ओके। लुमिनस इंटेंसिटी, इसकी यूनिट क्या होती है? कैंडेला। कैनेडा नहीं कह रहा हूं मैं, ये है कैंडेला, ओके। नहीं समझ में आया तो तुरंत पूछ लेना, कैनेडा मत लिख देना। एंड यहां पर इसकी क्या हो जाएगी? मोल। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लेन एंगल। अगर प्लेन एंगल को देखें तो यहां आ जाएगी इसकी यूनिट रेडियन, और यहां आ जाएगी, सो दिस इज स्टेरेडियन। एक यूनिट रेडियन है तो दूसरे की क्या है यहां पर? स्टेरेडियन। तो वापस एक बार ब्रीफली देख लेना फटाफट। लेंथ की मीटर, मास की किलोग्राम, टाइम की सेकेंड, टेम्परेचर की केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, luminous intensity कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, एंड सप्लीमेंट प्लेन एंगल रेडियन, सॉलिड एंगल स्टेरेडियन। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि आगे आने वाले एग्जाम्स में काम आ सकती है, तो आपको याद रखनी है। लुमिनस इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है? कैंडेला। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट क्या होती है? मोल। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। नाउ वी आर डिस्कसिंग द नेक्स्ट वन कॉन्सेप्ट, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। Here we are going to be talk about the forward topics। तो समझ में आ रहा है हीरो लोग? समझ में आए तो शेयर करो और से सब्सक्राइब करो और लाइक भी करो। तो चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है आपकी टॉपिक है जिसमें हम बात करने वाले हैं डिराइव्ड यूनिट्स। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग?
डिराइव यूनिट्स। तो डिराइव यूनिट्स क्या होती है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है जो हमें समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेना है यहाँ पर दोज, सेम डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। दोज फिजिकल क्वांटिटीज, those physical quantities which are derived from fundamental quantities, which are derived from fundamental quantities are called derived units, and this is the very important way to understand कि यहाँ पर जो derived units है वो टोटली किसके ऊपर डिपेंड करती है, फंडामेंटल। सो वी कैन से दैट derived units, इसीलिए इसका नाम भी क्या रखा, derived मीन्स किसी से क्या हुई है, एग्जिस्ट हुई है, किसी की हेल्प से। derived units depends on, so I can say that depends on, किसके ऊपर डिपेंड्स करेगी, फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स पे डिपेंड करेगी। ओके, एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है इसका वेलोसिटी, मैं समझा देता हूं, आपको समझ में भी आ जाएगा। फिर दूसरा जो एग्जांपल इसका ले रहा हूं मैं आपका एसेलरेशन, जो आपने अभी अभी 10th में पढ़ के आए हो वही एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। एंड द नेक्स्ट वन इज फोर्स, और उसके बाद मैं एग्जांपल ले लेता हूं वर्क का, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको समझनी है अच्छे से। सो एज यू नो दैट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। तो डिराइव हुआ ना, आखिर देखो लेंथ और टाइम क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स है, और वेलोसिटी कैसी यूनिट्स है, डिराइव्ड यूनिट्स है। कैसी यूनिट्स है, डिराइव्ड, क्योंकि वो बनी किससे है, फंडामेंटल यूनिट नंबर 1 डिस्प्लेसमेंट, फंडामेंटल यूनिट नंबर 2 टाइम से बनी हुई है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एसेलरेशन। तो एसेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी अपॉन टाइम को खोल देंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर, तो यहां पर डिस्टेंस भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। वेक्टर है तो डिस्प्लेसमेंट, और स्केलर है तो डिस्टेंस। समझाऊंगा वेक्टर स्केलर क्या, उसका पूरा एक चैप्टर है। तो यहां पर देखा इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। इसकी यूनिट्स क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो काफी इजी है। फिर फोर्स को देखें तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मा, आपने पढ़ाई होगा। देखो एम यहाँ पर फंडामेंटल है, ए को क्या लिख सकते हो आप, फिर एम, और ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर लिख सकता हूँ। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और न्यूटन इसकी क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट है। न्यूटन को दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो इसकी और कौन सी फॉर्म हो जाएगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी ओरिजिनल यूनिट हो जाएगी। और वर्क के भी फोर्स का अभी निकाला हमने, क्या निकाला था, मास इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर। तो यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, मास इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, डी। तो काफी सिंपल है। मैंने सभी क्वांटिटी को किसमें कन्वर्ट कर दिया, फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये पूरी की पूरी क्वांटिटी किसकी है, वर्क की, और वर्क की ये जो क्वांटिटी है उसको मैंने किसमें चेंज कर दिया है, फंडामेंटल क्वांटिटीज में। सो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब तो क्लियर हो ही गया होगा कि डिराइव यूनिट्स क्या होती है और फंडामेंटल क्या होती है, ठीक है। अब मैं जो बात करने वाला हूं, ओके, सम पार्ट ऑफ टॉपिक इज रिमेनिंग, तो आज बात कर लेते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहले तो ये समझिए कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, ठीक है। तो मैं इसे कह सकता हूं, ये सेट है, इट इज अ सेट। किसका सेट है ये, दो क्वांटिटीज अभी हमने पढ़ी। पहली क्या पढ़ी थी, फंडामेंटल, और दूसरी क्या पढ़ी हमने, डिराइव्ड। तो अगर आपको कोई टीचर पूछे सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, सर दिस इज द सेट, किसका सेट है ये, फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट्स का सेट है सर, ठीक है, ये तो बता सकते हो। ओके, सो चलते हैं आगे हीरो लोग। अब नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक है, याद रखना सिस्टम ऑफ यूनिट्स किसका कॉम्बो है, फंडामेंटल और डिराइव का।
पहले अलग अलग पढ़ा था, अब उसको सिस्टम ऑफ यूनिट्स बना दिया, तो दो चीजों को एक ही सेट में डाल दिया, इसलिए इसको क्या बोला, सिस्टम ऑफ यूनिट्स. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ system of units. So let's try to understand कौन कौन से टाइप्स हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स के. तो पहले समझ लेते हैं. पहला है CGS, दूसरा है FPS, थर्ड आपका है यहाँ पर MKS और फोर्थ है आपका SI. तो इसकी फुल फॉर्म समझ लेना. C यहां पर स्टैंड करता है सेंटीमीटर, और G है यहां पे ग्राम, और S है यहां पर सेकंड. मैं समझाऊंगा आपको, डोंट वरी अबाउट दैट. F यहां पर स्टैंड करता है फुट के लिए, और ये स्टैंड करता है यहां पर पाउंड के लिए, और S अगेन किसके लिए स्टैंड करता है, सेकंड के लिए. फिर फर्स्ट M है यहां पे स्टैंड करता है मीटर के लिए, और ये स्टैंड करता है किलोग्राम के लिए, और लास्ट अगेन ये किसके लिए स्टैंड करता है, सेकंड के लिए. ठीक है, और इसे बोलते हैं, फुल फॉर्म याद रखनी है इसकी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड. इंटरनेशनल स्टैंडर्ड. तो इंटरनेशनली जो एक्सेप्टेड यूनिट्स है उसकी बात हम इसमें करेंगे. तो ये टॉपिक तो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ऐसा ही वाला. पहले इसको समझ लेते हैं. ये सारी जो फर्स्ट टर्म है उसको किसको डिस्क्राइब कर रही है, लेंथ को, और ये किसको डिस्क्राइब कर रही है, मास को, और ये किसको डिस्क्राइब कर रही है, टाइम को. तो काफी आसान है, पहले समझ लो. अगर CGS सिस्टम है तो लेंथ को किसमें मेजर करेंगे आप, सेंटीमीटर में. अगर CGS सिस्टम है तो मास को किसमें मेजर करेंगे, ग्राम में. एंड अगेन इन CGS सिस्टम सेकेंड. देखो चाहे कोई सा भी सिस्टम हो, टाइम हमेशा किसमें रह रहा है, सेकेंड, सेकेंड एंड सेकेंड. अब FPS सिस्टम की बात कर लेते हैं. FPS सिस्टम में लेंथ फुट में होगी, FPS सिस्टम में मास पाउंड में होगा, और FPS सिस्टम में टाइम सेकंड में ही रहेगा. अब MKS सिस्टम की बात कर लेते हैं. इसमें लेंथ आपकी मीटर में रहेगी, और FKS सिस्टम में आपका मास किलोग्राम में रहेगा. किस में रहेगा, किलोग्राम में. सो आई होप सो यू अंडरस्टूड टाइप्स ऑफ सिस्टम. 4 हैं, CGS, FPS, MKS. इसको डिटेल में पढ़ना है, इसलिए मैंने खाली फुल फॉर्म समझा दिया आपको. इंटरनेशनल, ठीक है. सो यहाँ पे सॉरी फॉर दैट, इसे बोलेंगे इंटरनेशनल. ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देना आप, इंटरनेशनल. सो दिस इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट. ओके, इंटरनेशनल, सॉरी फॉर दैट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट्स है. तो CGS हो गया, FPS हो गया, MKS हो गया, और बता भी दिया लेंथ को CGS में क्या मेजर करते हैं, मास को क्या मेजर करते हैं, टाइम को क्या मेजर करते हैं. अगेन आई होप सो कि आप सभी हीरो लोगों को मैं जो समझा रहा हूँ वो समझ में आ गया होगा. ओके, सो लास्ट कुछ चीजें हैं जो आपको याद करने के लिए देनी है, तो मैं लिखवा रहा हूँ, उसे आप जरूर घर पे जाके याद करके आना. सो लास्ट वन वी आर गोइंग टू बी टॉक अबाउट हियर. सो हियर सम बेसिक SI system units. Some practical units you have to be just remind in your brain. Some practical units. और खासकर 11th में अगर आप आए हो तो कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स आपको याद रखनी ही है. देयर इज अ नो चांस. ओके, तो आपको फर्स्ट जो मैं यूनिट लिखवा रहा हूं ये किसकी है वो आपको 12th में पता चल जाएगा. आपको खाली याद रखना है. 1 फर्मी इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर. तो कितने मीटर होते हैं आपको याद रखना है, 10 to the power minus 15 मीटर होते हैं. 1 फर्मी इज इक्वल्स टू 10 to the power minus 15 मीटर. फिर सेकंड बात करें तो 1 एक्सरे यूनिट. एक्सरे आप निकलवाने जाते हैं मेडिकल्स में, ठीक है. अगर आप नीट और JEE के लिए जा रहे हैं तो आपको ये चीजें याद रखनी ही है. 10 to the power minus 13 मीटर. 1 फर्मी 10 to the power minus 15 मीटर. 1 एक्सरे यूनिट 10 to the power minus 13 मीटर. थर्ड है यहां पे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू कितना होता है वो भी आपको याद रखना है, 1.49 इंटू 10 to the power 11 मीटर. एंड द फोर्थ वन आपको जो याद रखना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसे आपको याद रखना ही है,
सो 1 लाइट ईयर, तो 1 लाइट इज ईयर इज इक्वल टू कितना होता है 9.46 10 टू द पावर 15 मीटर। इसे याद रखना ही है बिकॉज आप इसे बोल नहीं सकते। एंड अनदर इज 1 पारसेक, ये डिस्टेंस की यूनिट है, याद रखना ये सारी की सारी अलग अलग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नीट एंड जेईई में पूछी जाती है। 9.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर, अगर इसको मैं लाइट ईयर में कन्वर्ट कर दूं तो ये हो जाएगी 3.6 लाइट ईयर, क्योंकि लाइट ईयर आपका ये रहा। इसमें लाइट ईयर में कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर 10 टू द पावर 15 दे रखा है, ठीक है, और वो भी कितना दे रखा है 9.46 इन 10 टू द पावर 15। तो 1 पार्सेक को अगर लाइट ईयर में चेंज करेंगे तो जस्ट यू हैव टू बी जस्ट चेंज द डायमेंशन इनटू द लाइट ईयर, इट विल बी 3.26 लाइट ईयर, ठीक है। लाइट ईयर का कितना हो जाएगा 3.26। ओके, लाइट ईयर की जो क्या रिप्लेस कर सकते हो 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर रिप्लेस कर सकते हो, और जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे यू विल अगेन गेट योर आंसर 9.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर। उम्मीद करता हूँ आज की सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। सो थैंक यू सो मच टू enjoy the lecture series of physics, okay, and bye bye, jai jawan jai kisan।